India is home to 99 million children between 3 to 6 years of age. Early childhood experiences have a long-lasting impact on the development of brain in human beings. The process of development of lifelong skills is highly sensitive to external influence from home, care settings, and community interaction. This is why a comprehensive early childhood education program is essential for society. We have a robust policy framework supporting early childhood education, or ECE as it is commonly called. Recognizing its importance, one of the goals of the new National Education Policy, or NEP 2020, is to universalize ECE by 2030. Therefore, CBGA and Save the Children undertook a study to estimate the cost for universalizing ECE in India. Our first question was, what is the current status of ECE in India? It was found that there is a vast variety of ECE programs provided through 3 channels: the government, NGOs, and private entities. However, even today, 37 million children in the country are deprived of any ECE service. In 2020-21, government budget for ECE in India was Rs 25,000 crore. It meant that the annual per-child spending was around 8,200 rupees. This constituted only 0.1% of the country's GDP. In comparison to other countries, our ECE spending is quite low. To estimate cost of universalizing quality ECE services, we first identified the constituents that must be present in a good quality ECE center and their costs. For this, we analyzed existing studies and policies and conducted detailed surveys with 14 functional ECE centers across the country. Let's take a look at the quality components we identified. Good infrastructural facilities are the first important aspect. They include minimum specific classroom size, toilet and hand washing facilities, availability of clean drinking water, furniture, play and learning material, a computer with internet connection. The next important component is professionally qualified human resources, including teachers, center head, and helpers. The teacher-child ratio in an ECE center must be 1:20. Moreover, ECE teachers' salaries need to be standardized and the staff must be provided with regular training and capacity building, as well as a good quality ECE center must provide breakfast and hot-cooked midday meals and conduct regular health checkups and immunization. Additionally, monitoring and evaluation of all ECE centers must be undertaken at regular intervals. Last but not the least, parental and community participation is key to support quality ECE system. Keeping these indicators in mind, we developed 3 models in line with NEP recommendations. These are Standalone Preschool and Daycare Center, Standalone Anganwadi Center, and Pre-Primary Section located within primary schools. As per our design, a standalone preschool cum daycare center would operate for 6 to 8 hours. The standalone Anganwadi center and pre-primary section located within primary schools will operate for 4 hours. Next, the approximate costs of providing ECE through each of these models were calculated to estimate the cost for universalizing ECE in India. In the standalone preschool cum daycare center, the estimated per child per year cost is Rs 37,000 to Rs 56,000. In the standalone Anganwadi center, it is Rs 33,000 to Rs 46,000. In the third model, the cost is Rs 46,000 to Rs 49,000. Using these estimates, the cost of providing ECE to all children of 3 to 6 years age group amounts to 1.5 to 2.5% of the GDP, as the table shows. If the ECE service is to be extended only to those who are currently not receiving any ECE services, an additional spending of 0.5% to 0.9% of the GDP would be required. Through our research experience, we also devised some policy recommendations. India must enhance its spending on ECE so that all children can get the right start. The quality of Anganwadi services must be improved
Real-time disaggregated data is vital for effective planning, budgeting, and monitoring of ECE across the country. Professionally trained and well-paid workforce is the need of the hour. The financial norms of some essential components like salaries, educational material, etc. need to be standardized. Unit cost of components like rent, infrastructure, and learning material, etc. require an upward revision. ECE services need to be regulated across the diverse service providers. For more details about the cost analysis and the recommendations, please see our report, The Cost for Universalizing Early Childhood Education in India. राइट टू एजुकेशन एक्ट के निफाज के बाद, जिसको तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा रहा है, एक डिकेड से ज़्यादा अरसा हो रहा है, बच्चों की तालीम की इंडिया में क्या सूरत हाल है, उसका जायज़ा लेने के लिए एक रिपोर्ट सेव द चिल्ड्रन नामी तंजीम ने शाये की है, जिसको आज लॉन्च किया गया। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेव द चिल्ड्रन NGO की डिप्टी डायरेक्टर कमल गौड़ साहिबा। आप ये बताइए, ये जो रिपोर्ट लॉन्च की है आपने आज, कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडिया, इसके कंटेंट क्या है? ये एक मुहिम है जो हमारे 6 साल से 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको उनका राइट दिलाने के लिए, उनकी शैक्षिक राइट के लिए, शिक्षा का राइट है। और चूँकि वो बच्चे वोट नहीं करते हैं तो वो सेंस भी नहीं करते हैं, और ये बोला जाता है कि वो बच्चे माँ बाप के साथ हैं तो सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको किसी और जब आप माने ये जो 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, दिमागी विकास जो होता है ना वो 90% तक हो जाता है। तो अगर 90% दिमाग जिस समय विकसित हो रहा है और हम उस समय उनसे सही उनके उम्र के हिसाब से अगर तालीम की बात ना करें, और ज़रूरी नहीं है कि हम बात नहीं करें लिखने पढ़ने की, पर हम ना करें तो वो तो जस्ट नहीं है ना। इसका मतलब वो बच्चे अपना फुल पोटेंशियल तो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको वो बुनियादी तालीम, जैसे बात करते हैं 3 से 6 साल की तालीम है, वो देने के लिए आपको सरकार को कुछ यूनिफॉर्म लेवल पे, मतलब सरकारी स्तर के लेवल पे कुछ प्रोविजनिंग करनी चाहिए, और वो प्रोविजनिंग क्वालिटी एजुकेशन के लिए होना चाहिए। तो उस पे हमने ये रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने कुछ मॉडल को कॉस्ट किया, ये बताया कि सरकार को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एक बच्चे के पूरे पोटेंशियल को लंबे समय में। बिल्कुल। तो अगर बच्चा 90% जब दिमाग का विकास होता है उस समय ही नहीं अपनी स्टिमुलेशन, कुछ स्किल नहीं सीखेगा। बोलते हैं कि 5 साल के बच्चे कम से कम 5000 शब्दों तक सीख जाते हैं। तो अगर हम उस समय उनको शब्दों से दोस्ती नहीं कराएंगे, हम उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, तो वो कैसे अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचेगा। तो हमारा मुद्दा यही है, अगर आप उसको यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं उन बच्चों की तालीम के लिए, तो कृपया करके इस चीज़ पे बातचीत शुरू कीजिए। तो हमने वो बातचीत के लिए एक प्रस्ताव समझिए रखा कि हमको अगर यूनिवर्सल प्रोविजनिंग करनी है तो करीब 1.5 से कह लीजिए और 2.5% के बीच में सरकार को GDP का हिस्सा इसमें लगाना पड़ेगा। तो आप अभी ये बताइए हमें कि इसकी जो फाइंडिंग्स है, कुछ सर्वे वगैरह भी किया होगा आपने, तो इस वक्त एक एस्टिमेटेड कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस एजुकेशन से, जिसकी तरफ आप तवज्जो सरकार की दिलाना चाह रही है, पब्लिक की तवज्जो दिलाना चाह रही है, कितने बच्चे ऐसे महरूम हैं, इससे अभी डिप्राइव्ड हैं? महरूम का तो समस्या ये है कि आपके पास कुछ डेटा नहीं होता है, तो वो कहना मुश्किल है कितने महरूम हैं। पर पुरानी कुछ जो स्टडीज़ हुई हैं उसके हिसाब से बोलते करीब 30% बच्चों का पता नहीं है वो कहाँ क्या कर रहे हैं, और जो बाकी 70% है उनका ये नहीं मालूम को वो कैसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना, कि सही शिक्षा मिल रही है या नहीं, एक वो मुद्दा। और दूसरे वाले बच्चों के लिए जो है कि वो कहाँ है हमें नहीं मालूम है। तो अगर एक स्टडी हुई थी उसमें बोला गया अगर सुबह 9 बजे
पूरी हिंदुस्तान में एक सर्वे किया जाए कि बच्चे कहाँ हैं, हम नहीं बता सकते वो बच्चे कहाँ हैं। और उस समय कहाँ होने चाहिए थे, वो किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान में होने चाहिए थे वो बच्चे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो हमको नहीं मालूम वो बच्चे कहाँ हैं हमारे। सो मुझे ये है कि डेटा की एब्सेंस में सिर्फ ये पता लगता है कि 30% बच्चे कहीं नहीं हैं, है ना। वो एक पुरानी स्टडी है, पर सरकार कोई प्रावधान नहीं रखती है कि रेगुलर बेसिस पे डेटा कलेक्ट करे और अपडेट करे। अच्छा, तो ये RTE का कुछ फ़ायदा हुआ हमारे देश में, परसेंटेज कुछ बड़ा है? तो बोलते हैं कि एक रिपोर्ट आती है हर साल, वो कहा जाता है कि 10 से 12% जो स्कूल हैं वो सिर्फ RTE कंप्लाइंट हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो डेटा काफ़ी बात करता है अपने बारे में कि हमारी क्या स्थिति है। तो अब ये जो है हमारे पास ना क्वालिटी बढ़ रही है ना क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों भी एक बड़ा वो है। और आप जानते हैं कि तालीम पर हमारी हुकूमत बहुत कम खर्च करती है, हेल्थ पर भी बहुत कम खर्च करती है। अब आप कह रहे हैं कि 2.5 सिर्फ इनके लिए रखा जाए GDP का। हम इसलिए रेंज की बात कर रहे हैं। जी। हम रेंज की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इसके बीच में रखा जाए, सरकार बातचीत करे और अपनी तरफ से और इसके ऊपर जानकारी ले, डिसाइड करे कितना, मतलब तो बातचीत होनी चाहिए ना। कहाँ 0.1%, तो गैप तो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ना कुछ बातचीत करे, साधन संसाधन जुटाए, हमारे जैसी गैर सरकारी संस्थाएं उनसे बात करें, अभिभावकों से बात करें कि उनको क्या चाहिए, है ना। तो जो भी ड्रीम है पेरेंट्स के वो कैसे रियलाइज़ होंगे। और हमारी जैसी संस्थाएं जो ये बोलती हैं कि हर आखिरी बच्चे तक हमको पहुंचना है, तो कॉस्ट तो लगेगी ना। तो आप समझती हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़दीक, पॉलिटिशियन के नज़दीक एजुकेशन कोई इशू नहीं बनता है, न पब्लिक में इशू बनता है कि भाई एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ऐसी हालत में आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, है ना, एक पित्तामारी का काम है, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मुश्किल तो काम है, आसान नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस तो खूब आते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया है, हम इस तरीके के बच्चों के साथ और इस तरीके के विषयों पे काम करेंगे, तो काम करते हैं। तो हमारी जो संस्था है उसको संस्था की तरह से नहीं देखा जाए, उसको बोलते हैं ये मूवमेंट है। तो हमारी संस्था मूवमेंट है जो बच्चों के लिए काम करेगी। हम उस मूवमेंट का हिस्सा हैं, तो हम काम करेंगे। आखिरी मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में जो है 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम है, एक 5 स्टार एजुकेशन सिस्टम है, एक जो सरकारी जो चलता है वो सिस्टम है। तो सरकारी सिस्टम में बहुत ही लापरवाही होती है। देखिए, सरकारी सिस्टम तो अगर देखा जाए तो सबसे क्वालिफाइड टीचर वहाँ है ना। देखा जाए तो उसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, मतलब हर 1.5 किलोमीटर के अंदर स्कूल कहाँ मिलता है, एक स्ट्रक्चर है, एक्सेस है और खाने का प्रोविजनिंग है। तो इस तरीके से प्रोविजनिंग तो है, थोड़ी सी क्वालिटी को और स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि तो थोड़ा जो है ना फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं ना, उसको अंग्रेजी में मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा है ना, फर्स्ट अपना काम है, मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होता है हमारे पास जो है सरकारी मुलाजिमीन में। देखिए, तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग और होनी चाहिए, टीचर्स की कैपेसिटी को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू का ध्यान देखना है। बच्चे घर से और बिल्डिंग स्कूल तक आने और वहाँ से आने जाने में कैसे सेफ महसूस करते हैं, तो उस तरीके की प्रोविजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़रूर हम इसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कमल गौर साहिबा, साला से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये थी कमल गौर साहिबा जो सेव द चिल्ड्रन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसकी तफसीलात बता रही थी। उनका कहना है कि कई लेवल पर काम करने की ज़रूरत है और ये जो बच्चे जो तालीम से महरूम रह रहे हैं उसके लिए GDP का 2.5% जो है फिक्स करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।